گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کی؟ یہ مسالے ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ ان جگہوں کے لیے ہیں جہاں برف ہی برف ہوتی ہے۔ ایک وظیفہ ہے، جو بندہ ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار، اس کا غصہ ختم، اس کے اندر جذبات ختم، اس کے خیالات پاکیزہ۔ گھر حاصل کرنے کے لیے وظیفہ سارا دن وظیفہ یہی ہے، اور نیت کر میں اپنے گھر میں جانے کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں۔ مظلوم کے پاس اسم اعظم نہیں ہوتا، یقین اعظم ہوتا ہے اور بے چین دل ہوتا ہے۔ ضروریات نہیں بڑھی اور خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ قرضے کے لیے ایک دعا ہے، جو بندہ اس کو کثرت سے کچھ عرصہ لگاتار پڑھے توجہ سے، قرضے اتر۔ قبلہ ہمارے یہاں نوجوان نسل، ہمارا یوتھ اثاثہ ہے اور پاکستان یوتھ رکھنے والا ملک ہے، لیکن یہاں پہ عدم برداشت بہت زیادہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نیو کپلز، جتنی شادیاں ہو رہی ہیں، طلاق کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے۔ تو گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کیجیے کہ جو نوجوان نسل ہماری ہے وہ اپنے گھروں کو خوشگوار بنا سکے اور ان کے گھر میں خیر و برکت رہے، اس والے سے کوئی رہنمائی کیجیے۔ کتابی دنیا کا آدمی ہوں، 55 سے 55 تک کتابیں ہی پڑھ رہا ہوں۔ صحیح، علم کی کوئی حد نہیں۔ جی جی۔ انگریز نے ہمارے لیے جو مسالے مقرر کیے تھے برے صغیر کے لیے، اب وہ سنیے۔ جی، انہوں نے کہا جو بندہ یہ مسالے کھائے گا اسے غصہ نہیں آئے گا، ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوگا، وہ مریض نہیں ہوگا، وہ بیمار نہیں ہوگا، اور اس کے مزاج میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ پودینہ، دھنیا، خشک آلو بخارا، املی، ٹماٹر، صحیح، لیموں، کالی مرچ، دہی، سفید زیرہ، یہ ہیں ہمارے مسالے۔ اور جو ہم مسالے استعمال کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں، یہ ان جگہوں سے آتے ہیں جہاں برف ہوتی ہے۔ لونگ، جلوتری، جائفل، دار چینی۔ تیز مسالے ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ ان جگہوں کے لیے ہیں جہاں برف ہی برف ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ان جگہوں کے لیے ہیں، جلوتری وغیرہ، جی جی۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے۔ ہمارے لیے اگر یہ ہم نے اپنی غذاؤں میں مسالے پہ بدل دیں، طبیعتیں بدل جاتی ہیں۔ ایک اللہ کی نیک بندی مجھ سے کہنے لگی، بوڑھی تھیں، کہنے لگی بیٹے آئے ہاسٹل سے، بورڈنگ میں رہتے تھے، 3 مہینے کی چھٹیوں میں، ان کی نظریں میں نے پھری دیکھی۔ میں نے بچوں کو ترغیب دے کے پھیکی غذائیں استعمال کرنی شروع کرا دیں، سادہ غذائیں، وہاں مسالے دار کھاتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا بیٹوں کی نظریں بہترین ہو گئیں۔ واہ۔ ایک وظیفہ ہے، جو بندہ ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، اس کا غصہ ختم، اس کے اندر جذبات ختم، اس کے خیالات پاکیزہ، اس کی زندگی میں راحت ملتی ہے، سکون آتا ہے۔ ہر نماز کے بعد، ورنہ صبح شام، وضو بے وضو ہر حالت میں ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ صرف ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہمیں جو لوگوں نے شیئر کیا، وہ بے گھر لوگ، جو ان کا گھر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں گھر حاصل کرنے کے لیے وظیفہ دیں کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اس والے سے رہنمائی کر دیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے بات کی، ایک عمل سے میں نے استنباط کیا، اس کو فائدہ ہوا، پھر کئی کو اور بتایا، ان کو فائدہ ہوا۔ پہلے عمل واقعہ سن لیں، پھر عمل بتاتا ہوں۔ جی۔ ایک شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں غربت، فقر، فاقہ، تنگ دستی ہے۔ آپ نے فرمایا جب گھر میں جا سلام کر، ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ۔ اس نے یہ عمل شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کا نظام ایسا چلا کہ اس کے گھر میں اتنی وسعت آئی، تو حضور سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اللہ پاک نے اتنا عطا کیا ہے کہ پڑوسیوں کو بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس سے کہا، مجھے کہنے لگا گھر نہیں ہے میرا۔ میں نے کہا سارا دن پڑھ السلام علیکم، اس کے بعد قل اللہ، پھر السلام علیکم، پھر قل اللہ، تیرا سارا دن وظیفہ یہی ہے، اور نیت کر میں اپنے گھر میں جانے کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں۔ گھر ہے نہیں۔ اب آپ خود سوچیں، گھر تو ہے نہیں، وہ کرائے پہ گھر پہ تھا نا۔ بالکل صحیح۔ میرا اپنا ذاتی گھر ہے، میں جانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کر۔ اب یقین جانیے کچھ عرصے کے بعد اس کا مسکراتا چہرہ میں نے دیکھا، میں کام ہو گیا ہے۔ مجھ سے کہنے لگا، جی کیا غیبی نظام چلا، ہم دادا پردادا سے کرائے کے مکان پہ آ رہے تھے، آپ کے اس عمل نے السلام علیکم، پھر قل هو اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ مسلسل سارا دن اس نے پڑھا، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، کچھ عرصہ پڑھا،
अपना घर मिल गया और घर खूबसूरत बेहतरीन। वाह। अच्छा क़िबला ये बताएं कि आप इतने लोगों को वजीफ़े बताते हैं, माशाल्लाह दुनिया आपके वजीफ़े जो है वो उस अमल करती है और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ भी मिलता है। आपके ज़ाती मुशाहिदात में कौन से वजीफ़े हैं, आप कौन सबको हमें राज में सबको एक राज दे ही दें। 1984 में एक फ़कीर दरवेश से मैंने बैत की, पर उसके बाद मुड़ के नहीं देखा। अच्छा। और मेरा इश्क, मेरी मोहब्बतें उन्हीं के साथ 1991 में उनका विसाल हो गया, जन्नतुल बकी में मदफून है। सुभान। उन्होंने मुझे अनमोल ख़जाना दिया था, मैंने वो वजीफ़ा छपवाया हुआ है, अपकरी के सोशल मीडिया पे पड़ा है। जी। अनमोल ख़जाना नंबर 1 नंबर 2, ये कायनात है और लफ्ज़ ख़जाना है। अच्छा। दुनिया और आखिरत का ख़जाना है। असल बात यकीन की है, अगर यकीन ना हो तो कुछ हासिल नहीं, और अगर यकीन हो तो एक ही हस्ती से सब कुछ मिलता है, इंसान अगर यकीन से चले, वरना बेयकीन का सब ख़त्म हो जाता है। अनमोल ख़जाना यकीन से पढ़े। अच्छा, ये जिन्नात और मौकलात में फ़र्क क्या होता है क़िबला? एक ही चीज़ है। अच्छा। फ़र्क नहीं, अल्फाज का फ़र्क है। अच्छा। और मौकलात फरिश्ते भी होते हैं। वो ऐसे, इसकी एक मिसाल सुनाता हूँ। एक मजदूर था, वो लोगों को सामान उठा के ले जाता था। एक उसे माजूर आदमी मिला, हाथ पाँव लूले लंगड़े। उसने कहा अपने खच्चर में मुझे बिठा ले, तो मैं जिस तरफ तेरी मंजिल है मेरी भी वही मंजिल है, सही, तुझे पैसे दे दूंगा। उसने बिठा लिया। रास्ते में वीरान आया तो वो माजूर आदमी निकला, ठीक ठाक था, खंजर, मैं तुझे मारता हूँ। उसने कहा तेरा मकसद माल है, माल ले ले। उसने कहा नहीं, मेरा उसूल है, पहले बंदा मारता हूँ फिर माल लेता हूँ। अच्छा। तो बेचैनी और बेकली की कैफियत में इसने नफिल पढ़े और नफिल में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अचानक ये आयत आई, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ, कौन है जो बेचैन दिलों की दुआओं को सुनने वाला है। बेचैन दिल। हाँ, याद रखिएगा, मजलूम के पास इसमें आज़म नहीं होता, यकीन आज़म होता है और बेचैन दिल होता है। वाह 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 वाह, बेचैन दिल। वाह वाह। उसने जब बेचैनी के साथ पढ़ा ना, तो ये अब गुर्ज मारने लगा। अर्शों से आवाज़ आई, ठहर जाओ। फरिश्ता आया, उसने उस जालिम को गुर्ज मारा, यहाँ गिरा, उस पर आग लगी। और वो फरिश्ता जाने लगा तो उससे पूछा, मेरे आका आप कौन हैं? कहा, मैं इस आयत का गुलाम और मुवक्कल हूँ। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह पाक चाहे मेरी आपकी मदद फरिश्तों के जरिए करा दे, जिन्नात के जरिए करा दे, खुद बेअख्तियार नहीं, अल्लाह ने दुनिया को असबाब की दुनिया बनाया। सर, ये कर्जा लोगों पर चढ़ा हुआ है, लोग बहुत मकरूज हैं, कर्जा उतारने के लिए कोई वजीफ़ा इनायत करें ताकि लोगों की राहत हो सके, आसानी हो सके। उसके लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा है कि हर हफ्ते अपनी फैमिली को आउटिंग और खाना ज़रूर खिलाएं। अच्छा। कर्जा लेके, बैंक से, क्रेडिट कार्ड, चीज़ें करके, शॉपिंग, बैंक से खाना और पहाड़ों की सैर, ये सबसे पहले। और ब्रांड की चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें, कर्जे वाले ख़ास तौर पे, कर्जा ख़त्म हो जाएगा। इसकी हिकमत बताएं क़िबला। इसकी हिकमत ये है कि अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाए, ज़माने को देख के अपने ऊपर मकरूस हो जाए। मेरी आका ने यहाँ तक फरमाया, मेरे हुजूर ने, बहता पानी है तो भी एहतियात से पानी को वज़ू कर। अल्लाह अल्लाह। बहता पानी है, मेरी आका ने फरमाया। हमारी ख्वाहिशात बढ़ गई हैं, ज़रूरियात नहीं बढ़ी, और ख्वाहिशात की कोई इंतहा नहीं है। सही। एक तो अपनी ज़रूरियात पे कंट्रोल, नज़र रखें। हम ज़माने को देख के ना चलें, अपनी कैफियत को देख के चलें। ठीक है। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ अपने सब मुखलिसीन से। दूसरा, कर्जे के लिए एक दुआ है जी। अल्लाहुम्मा कफ़ीनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका मन सिवाक। मैं बेशुमार लोगों को बता चुका हूँ, मसनून दुआ है। जो बंदा इसको कसरत से कुछ अर्सा लगातार पढ़े, तवज्जो से, कर्जे उतरते हैं। और यहाँ तक उतरते हैं, रब गनी कर देता है। और यहाँ तक गनी करता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे भी आए हैं कि एक साहब मुझसे कहने लगे, आप मुझसे इस दुआ की इजाज़त वापस ले लें, मैं अब गिन नहीं सकता। अच्छा। कर्जे गए, गनी हो गया। वाह। और फिर जो बंदा इस दुआ पढ़ेगा, वो गनी भी हलाल और तैयब ताहिर माल से होगा। सुभान अल्लाह। इस दुआ में वादा है। मेरे घर में पानी का खतरा भी नहीं, मेरे घर में दाना भी नहीं, मेरे घर में जौ भी नहीं। मैं आपसे इमदाद नहीं मांगने आया, दुआ मांगने आया।
3 दिन मुसलसल मैं अल्लाह के खजानों में देख रहा हूं कि तेरे लिए कोई रिस्क का जर्रा जो आशूरा के दिन अपने घर वालों पे रिस्क की वुसअत करेगा। मैं गुलाम, अब मैं आका बना बैठा हूं। जुमे का दिन था, सुबह सुबह आके किसी ने दरवाजे में, मेरे घर में चींटियां और मकोड़े कीड़े नहीं हैं, तो इस बात की दलील है घर में कोई जरा ही नहीं गिरता। कितने फाके हैं, घर में मशकीज़ा है वो भी फट गया है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, मैं बसरा में उनके पास हाजिरी मेरी हुई। एक शख्स हाजिर हुआ तो अर्ज कहने लगा, शेख घर में फक्र और फाका है। लेकिन उसने जो पहले लफ्ज कहे थे वो लफ्ज कुछ और थे कि शेख मेरे घर में चींटियां और मकोड़े कीड़े नहीं हैं, तो इस बात की दलील है घर में कोई जरा ही नहीं गिरता, इतना फाका है। मकोड़े जर्रे मेरे घर में नहीं है, मेरे लिए कुछ कीजिए, मेरे लिए कुछ कीजिए। तो सरकार का फरमान है, सरकार का फरमान है कि अच्छा ऐसा है कि कल आना। वो कल आया, उसने अपनी ज़बूहुल आली की दास्तान उससे बदतर सुनाई। कितने फाके हैं, घर में मशकीज़ा है वो भी फट गया है, उसको पैमन लगा लगा के थक गया हूँ, मशकीज़े में पानी नहीं रहता, मेरे घर में पानी का खतरा भी नहीं, मेरे घर में दाना भी नहीं, मेरे घर में जौ भी नहीं, मेरे घर में कोई पनीर भी नहीं, मेरे घर में कोई जैतून नहीं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, फाकों से हैं। और फिर एक बात अर्ज की उस साहिल ने, शेख मैं आपसे इमदाद नहीं मांगने आया, दुआ मांगने आया। इमदाद मांगने नहीं आया, दुआ मांगने आया। मेरे दुआ फरमा दे और मुझे कोई दुआ बता दे। शेख ने सर झुकाया, फरमाया कल आना। उसने मायूसी की हालत में शेख के चेहरे पे नजर की, लेकिन अल्लाह के वली थे, उसे भरोसा और एतमाद था। और याद रखिएगा, जिसको मिला है एतमाद में मिला है, और जिसको मिला है भरोसे पे मिला है, भरोसे में मिला। अगली दफा आया, अगले दिन आया तो खामोश बैठ गया, नहीं बोला और खामोश बैठा रहा। हजरत ने उसके कंधे से पकड़ के उसे अपनी तरफ मुतवज्जे फरमाया, फरमाया मुझे तेरी दर्द, तेरी तंगदस्ती, तेरी ज़बूहाली का एहसास है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं 3 दिन मुसलसल अल्लाह के अवामिर की तरफ मुतवज्जे हूं। 3 दिन मुसलसल मैं अल्लाह के खजानों में देख रहा हूं कि तेरे लिए कोई रिस्क का जर्रा है, कोई रिस्क का दरवाजा है, मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक दूर रोशनी नजर आ रही है, और वह है 10 मुहर्रम का, आशूरा का दिन। एक तेरे लिए रोशनी है, वो नजर आ रही है। अगर तू उस पे मुतमिन होता है तो फिर तेरी 10 नस्लों के लिए रिस्क के दरवाजे हैं। और फरमाया, सीने पे हाथ रख के फरमाया, हसन इस बात का अल्लाह की रहमत से गवाही देता है कि तेरी 10 नस्लों में रिस्क, वुसअत, बरकत के दरवाजे। जब उसने 10 नस्लों की बात सुनी, उसका सांस में सांस हौसला आया, और वो बेचारा जो मायूसियों में चला गया था, उसके अंदर कुछ जान और रमक आई। तो कहने लगा, हुजूर आप फरमाए मैं क्या करूं? फरमाया, रोजी कर, मेहनत कर, रोजी कर, मेहनत कर, और कुछ कमा, कुछ बचा, खा भी सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा आशूरा के दिन के लिए बचा, थोड़ा थोड़ा 10 मुहर्रम के लिए बचा। जब 10 मुहर्रम करीब आए तो यकम मुहर्रम को मेरे पास आ जाना, यकम मुहर्रम को मेरे पास आ जाना। कहा ठीक है। वो चला गया। यकम मुहर्रम से पहले वो आ गया। शेख ने देखा, पहचान लिया, उसे बिठाया, मोहब्बत दी। फरमाया, अब जितने पैसे तेरे पास हैं, तो उसने कहा चंद दिरहम है, और मैं बहुत हैं, चंद दिरहम ऐसा कर, घर वालों पे खर्च कर 10 मुहर्रम। ये चंद दिरहम 10 मुहर्रम घर वालों पे खर्च कर, क्योंकि आका का फरमान है, जो आशूरा के दिन अपने घर वालों पे रिस्क की वुसअत करेगा, आशूरा के दिन 10 मुहर्रम के दिन अपने घर वालों में को खुला रिस्क देगा और उन पे खर्च करेगा। एक रिवायत में है खुला, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, एक में है खर्च, जितना तौफीक हो खर्च करेगा, तो अल्लाह जल्ला शान हो उसकी नस्लों को फ़क्र फाके से बचाएंगे, और अल्लाह उससे राजी होंगे, और उसके लिए जन्नत के वादे हैं। आपने उसे वादे सुनाए और वह चला गया। साल के बाद आया तो देखा कि एक दूर से एक शख्स है जिसके साथ 3 ऊँटनियां हैं, एक पे खुद बैठा है, 2 पीछे चल रही हैं। उसने आके ऊँटनियां बिठाई
बिठाने के बाद जब शेख के पास करीब आया तो शेख ने पहचाना ये तो वही शख्स है, लेकिन आज इसकी हालत बदली हुई है, इसके नक्शे बदले हुए हैं, इसकी कैफियतें बहुत ज़्यादा बदली हैं, क्या हुआ? उसने आके सलाम अर्ज किया, अदब से बैठा और कहने लगा, हुजूर आपके अमल ने मुझे रंग दिया, मेरा जर्रा जर्रा का कमाया हुआ था, मेरा जर्रा जर्रा का हलाल जमा किया हुआ था, उस जर्रा जर्रे के जमा किए ने मेरे लिए हैरत अंगेज रहमत और बरकत के दरवाजे खोले। आपने फरमाया ये जो ऊँटनी जिस पे बैठ के आया हूँ फलां नस्ल की आला ऊँटनी है। एक शख्स को मैंने देखा, वो आवाज़ लगा रहा है कोई इस ऊँटनी को खरीद ले, चाहे उधार पे ले ले और मैं उससे पैसे बाद में ले लूं। तो मैंने उससे पूछा कि इस ऊँटनी के बारे में तुझे क्या ऐब है, तू इसे जबरदस्ती आखिर क्यों बेचना चाहता है? कहा वो खामोश रहा। कहा कि मियाँ अगर लेना है तो ले लो वरना हम चले हैं। कहा नहीं बताएं। जब मैंने इसरार किया, कहा कि मैंने इस ऊँटनी के बारे में, इस ऊँटनी का ख्वाब देखा अपने बारे में, इसको ख्वाब में देखा, अपने बारे में देखा कि मेरे लिए ये ऊँटनी मुआफिक नहीं है और मैं किसी ऐसे शख्स को बेचूं जो ज़रूरतमंद हो, चाहे वो उधार ले ले। और कहा वो ज़बरदस्ती मुझे कहने का तुम ले लो। मैंने कहा मेरे पास एक दिरहम भी नहीं है, एक दिरहम एक दौनिक भी नहीं है, एक औकिया कुछ भी नहीं है। कहा कुछ नहीं है, ऊँटनी ले लो, इसे बेचो, जो मुनाफा मिले तुम ले लेना, जितने की बिके मुझे दे देना, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। कहा जबरदस्ती ऊँटनी के लगाम मुझे देके चला गया। कहा मैं परेशान हुआ तो अचानक मेरे दिल में आवाज आई, मेरे बंदे बिन मांगे रिस्क मिल रहा है, कदरदानी कर, ले ले। बस उस आवाज ने मुझे तसल्ली दी और उस आवाज से मैं मुतमईन हुआ और कहने लगे कि बस मैं फिर उस ऊँटनी को लेके चला शाम तक। एक साहब ने देखा, कहा वाह ऐसी जबरदस्त ऊँटनी कहाँ से ली? मैंने कहा बेचनी है, वाकई बेचनी है, ये तो बहुत आला नस्ल की है, ये लोग तलाश करते हैं, ये तुम कितने की लोगे? कहा तुम कीमत लगाओ, तुम कितने की लोगे? कहा कि उसने 500 दिरहम कहा। मैंने कहा नहीं मैं 800 से कम नहीं दूंगा। कहा अपनी जबान पे पक्के रहोगे? कहा पक्का हूं। कहा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें 800 दिरहम देता हूं। कहा कि मेरी लगाम नहीं पकड़ी जा रही थी, मेरा हाथ कांप रहा था। उसने मेरे हाथ कांपते देख के कहा क्या हुआ, तकलीफ हो रही है, कोई लर्जा हो गया? मैं क्या इजहार करूं, मैं तो 1 दिरहम को तरसता था और 800 दिरहम। कहा उसने मेरे हाथ से लगाम ले ली और मुझे खुद ऊँटनी में बिठा लिया और पैदल जा रहा। अब मेरा नक्शा अजब बढ़ गया, अजीब हो गया। मैं गुलाम, अब मैं आका बना बैठा हूं और मुझे ऊँटनी पे ले जा रहा है। घर गया, उसने मुझे अच्छा खाना खिलाया, बड़ी इज्जत दी, ऊँटनी को खाना दिया और मुझे 800 दिरहम की थैली पकड़ा दी। कहा मैं परेशान, इसको लेके कैसे जाऊं? वो मेरी परेशानी भाग गया। कहा आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहा कि मैं फलां बसरा की, फलां गांव, फलां बस्ती, फलां जगह का रहने वाला हूं। कहा मैं पहुंचाऊंगा। उसने ऊँटनी पे मुझे फिर बिठाया, खुद साथ बैठा और मुझे आगे बिठाया, खुद पीछे बैठा। हालांकि उस वक्त वो मालिक था, मैं मालिक नहीं था। मुझे 800 दिरहम दे चुका था और मुझे घर पहुंचाया। कांपता हुआ जब मैं घर पहुंचा, मेरी बीवी ने मुझे लर्जे की हालत में देखा तो परेशान हो गई। क्या हुआ? मैंने उससे कांपती जुबान और हाँफते दिल, धड़कते दिल और हाथों की लग्जिश के साथ ये सारा वाकया सुनाया। कहा उसने 800 दिरहम की देखा ना तो एकदम परेशान हो गई। मैंने कहा कहीं मर ना जाए, मुझे खतरा हुआ। अब कहा कि उसमें से हमने 1 दिरहम निकाला। कभी थैली को देखते हैं, सारी रात नींद ना आई और इस 1 दिरहम निकाल के हमने घर का खर्च लिया। वो पहला दिन था जब हम पेट भर के खाना खा के और अच्छा खा के रात को सोए। अब मेरे अंदर परेशानी और बेचैनी थी। वो बेचैनी ये थी, जिसकी ऊँटनी थी उसको मैं पैसे दूं, कहां से ढूंढूं? वो तो दे के चला गया। अब मैंने जाके अल्लाह से मांगना शुरू कर दी। जंगल में रोता था, 7 दिन मुसलसल मैं रोता रहा और घर आ जाता था, खाना साथ ले जाता था और फिर रोता था, अल्लाह मेरा देन है, मुझे मालिक से मिलवा, मेरा देन है, मुझे मालिक से मिलवा। कहा कि
جمعے کا دن تھا، صبح صبح آ کے کسی نے دروازے پہ آواز دی، میں پہچانا کہ وہی بندہ ہے، دیکھا تو وہی ہے، میں گلے لپٹ گیا، اسے رویا بہت زیادہ، میرا محسن تھا، میں اسے چوم رہا تھا، میں سر سے پاؤں تک اسے چوم رہا تھا، کہا وہ شرمندہ ہو رہا تھا، تو میں نے اسے یہ سارا واقعہ سنایا، ایسے اونٹنی دی، ایسے ایک بندہ ملا، اور اس نے 500 اور میں نے 800 درہم اور اس نے مجھے 800 درہم دیے، اب تک ہم اس میں سے 5 درہم خرچ کر چکے ہیں، یہ تھیلی ہے، یہ آپ اس میں سے لے لیں۔ کہا اس نے اس میں سے 250 درہم لیے، کہا یہ میری اونٹنی اصل میں 250 درہم کی تھی، باقی تیرے ہیں۔ کہا جب اس نے کہا نا تیرے ہیں تو میں ایک دم پریشان ہوا کہ اتنے پیسے میرے کیسے ہو سکتے ہیں، میرے باپ دادا نے آج تک اتنے پیسے نہیں دیکھے، غربت تو میں نے ورثے میں پائی تھی، غربت تو ورثے میں پائی تھی۔ تو کہا کہ پھر میں نے وہ تھیلی لی اور پھر میں نے اس سے کاروبار شروع کیا اور اس سے اونٹوں کا کاروبار ہی کیا، اور کہا کہ اب عالم یہ ہے کہ میرے پاس اونٹوں کا ایک قافلہ ہے، ایک ریوڑ ہے اور بہت اچھی نسل کے ہیں، میں 3 اونٹنیاں لایا ہوں، ان تینوں کے پیچھے ہدایے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے اسے لنگر خانے میں دے دیا، جمع کرا دیا، اور وہ کئی دن حضرت کی خدمت میں رہا اور چلا گیا۔ میرے آقا کا فرمان، اس سارے واقعے کا نچوڑ، میرے آقا کا فرمان سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو عاشورہ کا دن اپنے گھر والوں پہ دل کھول کر خرچ کرے، رزق حلال میں سے، طیب طاہر میں سے، رزق حلال میں سے، طیب طاہر میں سے خرچ کرے، اس کی زندگی میں کامیابیاں اور اسی طرح آتی ہیں۔ میرے حضور کے ایک ایک فرمان میں سچ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ اگر زندگی کے سبق میں آگے بڑھنا ہے، کامیابیاں آگے اور سبقت لے جانا ہے، تو ان فرامین پہ عمل کریں۔ یہ جو چھوٹی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان پہ